Good morning, children. So, once again, we are meeting in this new lecture. That is lecture number 2 of chapter 9. What is the title of the chapter? Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy. Am I right, children? So, in previous lecture, I told you, we are supposed to study 3 different topics. What is meant by fundamental duties, what is meant by fundamental rights, and what is meant by directive principles of state policy. Basically, these 3 topics are independent. Do you understand? They are all independent, but still they are interconnected together. Because you see, right and duty is just like a coin. Understood? Right and duty is just like a coin. आपने कोई भी सिक्का देखा होगा, चाहे वो 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का, कोई भी सिक्का आप देख लो, हर एक सिक्के की 2 साइड होती है, जिसमें एक हम किंग बोलते हैं, दूसरी साइड को हम क्रॉस बोलते हैं. तो ठीक वैसे ही तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 2 साइड है, राइट्स तो ड्यूटीज, ड्यूटीज तो राइट्स. किसी भी देश में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स अवेलेबल है, ड्यूटीज नहीं है, वो जायज नहीं है. और ड्यूटीज अवेलेबल है, राइट्स नहीं है, वो भी जायज नहीं है. आया समझ में? सो इट इज डैम श्योर that if there is existence of rights, there is sure existence of duties. And if there is existence of duties, there is sure existence of rights. Do you understand, children? So, let us talk first about rights. Basically, I explained you in previous lecture, this fundamental rights was incorporated by UN in 1948. बेसिकली यूएन वॉज मेड इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. वो सब मैंने आपको डिटेल में बताया था, कैसी हालत में क्यों हुआ था. बराबर है ना? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो. हाँ, सही पढ़ाता हूं ना भैया? गुड. दिस राइट्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन यूएन इन 1948, राइट? And that is why, specific date of December, let me say, 10th December. This right was installed in UN by 10th December. And this 10th December, from then, it was observed as Fundamental Rights Day. We celebrate every year 10th December as Fundamental Rights Day. You understand? We celebrate every year 10th December as Fundamental Rights Day. Now what happens? This thing goes on. It continues. But at a specific period of time, this rights goes on changing. Means meaning, availability, resources regarding these rights goes on changing. उसका नाम एक ही रहता है, लेकिन समय समय पे अंदर बदलाव आता है. वो बदलाव जरूरी है, क्योंकि कल के जो कायदे कानून थे वो आज पुराने हो जाते हैं, क्योंकि आज का नया समाज है, और नए समाज में नई जरूरियातें होती है, और नई जरूरियात के लिए नए कायदे बनाने जरूरी होते हैं. सो बेसिक रिमेन्स सेम, but the understanding goes on changing. Some amendments are constantly made in this. Okay. Now coming to fundamental rights. We have studied 6 fundamental rights. In previous chapter I have mentioned you.
Once again, I will deliver the name of that rights. That is, number 1, right of equality. Number 2, right of freedom. Number 3, right against exploitation. Number 4, right of freedom from religion. Religious freedom जिसे हम बोलते हैं, secularism. Number 5, cultural and educational right. Every child has a right to get educated. हर एक बच्चे का पढ़ने का अधिकार है. And in the year 2009, passing a special act in Parliament, government has made compulsory for each and every child aging 6 to 14 that child must go to school. कोई भी बच्चा शिक्षा के बगैर नहीं रह सकता. He or she has that right to get educated. चाहे वो ऊंच नीच हो, अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ी जाति के हो, दलित हो, आगे वाली जाति के, उज्जवल जाति के हो, कोई भी हो, बच्चा बच्चा होता है. और हर एक बच्चे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, राइट टू एजुकेशन. अंडरस्टूड? 6 to 14 इयर्स के बच्चे को उसके माँ बाप भी पढ़ने से मना नहीं कर सकते. अगर कोई बच्चा 10 साल का है, गरीब घर का लड़का है, अगर उसके माँ बाप बोलता है बेटा पढ़ने की हमारी औकात नहीं है, आप पढ़ के क्या करोगे? आप कोई काम पे लग जाओ, चाइल्ड लेबर. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. चाइल्ड लेबर, आप कोई भी काम पे लग जाओ, शाम को 50-100 रुपये कुटुंब के लिए जुटा लाओ. तो बच्चा अगर मना करे कि भाई नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को पढ़ना है बस, एट दैट टाइम parents also cannot force that child for work, because that child is totally secured, protected by law. क्योंकि संविधान, कानून उसके साथ है. वो बच्चा अगर स्कूल जाना चाहता है तो उसके माँ बाप भी उसको नहीं रोक सकते. मतलब दुनिया की कोई ताकत उसको पढ़ने से नहीं रोक सकती है. Do you understand? Such a great thing is that, but unfortunate to say कि ऐसे कानून होने के बावजूद भी आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर है. सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में चाइल्ड लेबर है. ये कलंक है हमारे समाज पे. जो बच्चे की पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है. क्योंकि बच्चे लोग, आपको मालूम है, हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है? हमारा बचपन. लेट मी कोट वन थिंग. आई वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग विथ यू. जब मैं आपकी उम्र का था, तब पेरेंट्स के साथ बाहर जाते थे. मम्मी पापा कोई होते थे, कोई सोशल गैदरिंग होता था, फंक्शन कोई होता था, तो पापा के साथ चला जाता था. तो उस वक्त सब लोग पापा के साथ बात कर रहे थे, हाय हेलो ऐसे बोलते. हम क्या करते, साइड में खड़े रहते, और कोई बोलता है कैसे हो भाई, ऐसे हम जवाब देते हैं, बस मजामा अंकल, તમે કેમ છો, બસ શું ભણો છો, 2-4 સવાલ હોય, કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણો છો, કઈ સ્કૂલમાં ભણો છો, અને એ 2-4 સવાલ પૂરા થઈ જાય એટલે પાછા પપ્પાની હારે વાત ચાલુ થઈ જાય. એટલે that time I used to think कि सब लोग मेरे पापा को बुला रहे हैं, मेरे को कोई क्यों नहीं बुलाता, कोई मेरे से बात क्यों नहीं करता.
है समझ में? तो मैं भी सोचता था उस वक्त, काश मैं बड़ा हो जाऊं, उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, और जैसे मेरे पापा को सब लोग बुलाते हैं उसी ठीक तरह मुझे भी बुलाएंगे, मुझे भी पूछेंगे। उस वक्त मैं सोचता था मैं बड़ा हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, समय चला गया, मैं बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद ये पता चला कि काश मैं छोटा होता। बड़ा बनने में कोई मजा नहीं है बेटा, कि जैसे आप बड़े हो जाओगे, जैसे आप आपका ग्रोथ होगा, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आप पे कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप इतने गिर जाओगे, आप इतने दब जाओगे कि आपको याद करना पड़ेगा। आई कैन चैलेंज एंड टेल दिस स्टेटमेंट, कि आपको याद करना पड़ेगा कि पिछली दफा आप खुले मन से कब हंसे थे, हैं? लास्ट टाइम व्हेन डिड यू लाफ विथ योर हार्ट? आपने हार्टली लाफ लास्ट टाइम कब किया था? आपको भी नहीं मालूम होगा, मेरे को भी नहीं मालूम है। आज हम बाहर से हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन दिमाग में हमारी जिम्मेवारी ही होती है, ये करना है, वो करना है, ये एडजस्ट करना है, ये वो एडजस्ट करना है, उसके पास जाना, वो ये करना है, वो करना है, ऐसे चलता है बेटा। सो यू आर एंजॉइंग योर प्लेजेंट डेज बिकॉज यू आर सेफ गार्डेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप भी हमारे जैसे, आपके मम्मी पापा की तरह, हमारी तरह, जब आप बड़े हो जाओगे, आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, आपको भी ये कंधों पे बोझ उठाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एट दैट टाइम यू विल रिमेंबर, काश मैं छोटा होता तो अच्छा होता। आज आप मेरे को बताओ, आपके पास इतने, अभी आप सब घर पे बैठे हो, आपके पास कितने केयर फ्री डेज है? अपने हिसाब से खाना, अपने हिसाब से जागना, अपने हिसाब से घूमना, अपने हिसाब से सोना। सही बात है ना? बिकॉज यू आर एंजॉइंग योर चाइल्डहुड। अच्छा, आपकी जितनी आजादी हमारे पास है, आप हमको सर बोलते हो, हम आपको गाइडेंस देते हैं, अंडरस्टूड? बच्चे लोग ये करो, वो करो, ये करो, लेकिन वास्तविकता बेटा ये है कि आपकी तरह हम आजाद नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? आपके पास जितनी आजादी है, वो आजादी मेरे पास नहीं है। तो आई एम ऑल्सो सिटीजन ऑफ द सेम नेशन विच नेशन यू बिलोंग। Understood? So, let us talk about our topic. I hope you enjoyed. Right of equality, religious right, freedom, all these things we have talked about. Now, in first lecture, I have made you to understand what is meant by right of equality. And almost, because as time was complete, as time completed, I was supposed to drop that topic in middle. And if you remember in last lecture, I told you some portion of this first topic that is called right of equality, which is remaining, will continue in next lecture. So, with that, I'll continue with my second right. Okay, children? Come to page number 66. Right? Page number 66. Opening line, very first line of page number 66. As a guarantee of social justice and personal dignity, untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited and a punishable offense.
क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, हमारे राष्ट्रपिता थे और रहेंगे भी, उसने ही अनटचेबिलिटी का विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? कि भगवान जब हमको ये दुनिया में भेजते हैं, जब भगवान हमको बनाते हैं, तो वो कोई बाइफर्केशन नहीं करते कि इतना लॉट हिंदू के घर में भेजना है, ये लॉट मुसलमान के घर में भेजना है, ये लोग सवर्ण के घर में, ये बच्चा दलित के घर में पैदा होगा। कुछ नहीं है। ये तो हम ये धरती पे आते हैं, जिस समाज में, जिस घर में हमारा जन्म होता है, उधर का लेबल हमारे से फोरहेड पे लग जाता है कि ये बच्चा बनिए का है, ये बच्चा ब्राह्मण का है, ये बच्चा हरिजन का है, ये बच्चा पटेल का है, दरबार का है, कोई भी, ये ऊंच वर्ग में पैदा हुआ है, ये नीच वर्ग। बाकी ईश्वर तो कोई डिफरेंस नहीं रखता, भगवान कोई डिफरेंस नहीं रखता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, इफ गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट in giving birth to a child, then who are we to discriminate? आप मेरे को बताओ। अगर भगवान ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, तो हमको ये डिस्क्रिमिनेशन का लाइसेंस किसने दिया? किसने हमको ऐसा बोला? कैसे हम समाज के ठेकेदार बन गए? सब इक्वल है। And that is why Mahatma Gandhi strongly opposed untouchability. Strongly. वो भी इंसान है हमारी तरह, छुआछूत का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। सब ईश्वर के बंदे हैं, सबको भगवान ने बनाया है। We are all the children of one same father. Then why should we create the barriers of naat and jaat and caste and creed and all these things? क्यों समाज को नात जात के बारे में बांटना? That is not called a citizenship. That is not called a true intellectual citizen rather. Understood? So, our constitution has prohibited this. Untouchability is a severe crime. And if it is practiced, it is a punishable act. बड़े सिटी में तो अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन इतने कानून होने के बावजूद भी आज हम न्यूज़पेपर में किस्से पढ़ते हैं, देखते हैं, छोटे छोटे सेंटर होते हैं, छोटे गांव कस्बे होते हैं, उधर आज भी हिंदुस्तान की 70 साल की आजादी के बाद भी अनटचेबिलिटी जीवित है, जो एक दुर्भाग्य की बात है समझ में? टाइटल्स एंड एपिथेट्स विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन. एपिथेट्स मीन्स एडिशंस, राइट? धरो कि आपको, आपका नाम है, उसके पीछे आप कुमार लगा दो, बराबर, जी लगा दो, तो वो एपिथेट बन गया, एडिशनल रिस्पेक्ट। ब्रिटिश के जमाने में था, अभी निकल गया है। हाँ, some titles which are governing titles, which are called governing titles rather, they remains. बाकी सब titles निकल गए हैं, right? In the society has been removed. The adjectives used before names like Sir, Diwanji, Rai Bahadur are removed. पहले ये सब adjectives थे, अभी ये कोई adjectives नहीं है, ये सब निकाल दिए गए, नहीं चलता। After independence, the government, in order to facilitate special contribution and achievement of individual in various fields, gave special awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Paramveer Chakra is awarded in military services. सिविलियन के लिए पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। आर्मी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र है। कोई भी जवान जब सर्विसेज में जाता है, देश की सेवा में लग जाता है,
तब हर एक जवान का एक सपना होता है कि उसको परमवीर चक्र हासिल हो, और ज्यादातर परमवीर चक्र शहादत के बाद ही हासिल होते हैं। अभी तक का आप रिकॉर्ड देख लो, बहुत कम लोग, बहुत कम जवान जिंदा रह के परमवीर चक्र हासिल किया, वो बहुत कम घटनाएं हैं। ज्यादातर परमवीर चक्र शहादत के बाद शौर्य और शहादत के लिए हासिल होते हैं। है समझ में? एडजेक्टिव्स लाइक जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल are added before names in military services, which are not considered as a violation of right of equality, क्योंकि ये उसकी रैंक है और रैंक के हिसाब से उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ वायोलेशन ऑफ इक्वालिटी। और उसके नाम से बुलाना भी नहीं चाहिए। आप देख लो, मेजर का कोई भी नाम हो, आपने देखी होगी मूवीज ऐसे देखते हैं ना, तो उसको नाम से नहीं बुलाते हैं, मेजर साहब ही बुलाते हैं। कर्नल साहब जो होते हैं, उसका कोई भी नाम होता है, उसकी नेम प्लेट पे भी लिखा होता है उसका नाम, सामने वाले को वो दिखाई भी देता है, वो पढ़ भी सकता है कि ये बंदे का नाम ये है, फिर भी उसको रिस्पेक्ट के लिए नाम से नहीं बुलाते, कर्नल साहब बुलाते हैं। आप सबको मेरा नाम मालूम है, बराबर है? मैं कौन हूं सबको मालूम है, सब बच्चे को मेरा नाम मालूम है, लेकिन कोई बच्चा फोन करके ऐसा नहीं बोलता, ए किरण भाई आ क्वेश्चन मैंने समझाओ, किरण भाई आ डाउट मैंने सॉल्व कराओ। बच्चा क्या बोलता है? सर प्लीज हेल्प मी, सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, सर ये आंसर कहां पे है, सर ये टॉपिक मेरा अधूरा है। तो मेरा नाम सर कहां है? मेरा नाम सर नहीं है, मेरा नाम तो किरण है। फिर भी आप लोगों ने ये टाइटल दिया, तो इट इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि गुरुजी को हम इंग्लिश में सर बोलते हैं, गुजराती में हम गुरु बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, साहेब बोलते हैं, बराबर है? तो दैट डज नॉट मीन यू वायलेट राइट ऑफ इक्वालिटी। कोई भी गांव में जाओ, कोई भी शाला का, कोई भी पाठशाला होती है छोटी सी, उसका एक मामूली सा शिक्षक होता है, प्राइमरी टीचर जो होता है। कोई भी टीचर बेसिकली मामूली नहीं होता है, आई एम सॉरी टू से, मेरा कहने का गलत मत इस्तेमाल करना। कोई टीचर बड़ा छोटा नहीं होता, हम भी टीचर है, सब टीचर सब बड़े हैं, चाहे वो केजी नर्सरी के टीचर हो या कॉलेज के प्रोफेसर्स हो, सब टीचर्स है। मतलब मेरा कहने का गलत मतलब नहीं निकालना। मैं जो कहना चाहता हूँ वो कि अगर एक मामूली स्कूल टीचर गांव में है, प्राइमरी वाले बच्चे को पहले दूसरे स्टैंडर्ड को पढ़ा दे, फिर भी गांव में उसकी इज्जत बहुत होती है, क्योंकि सारे गांव वाले उसको क्या बोलते हैं? मास्टर साहब अथवा साहेब, राइट? गांव का सबसे निकम्मा आदमी भी, सबसे गुंडा किस्म का आदमी भी उसको इज्जत देगा। वो बंदा पूरे गांव में इतना माथा भारे है, इतना कमीना है, फिर भी वो टीचर के पास वो रिस्पेक्ट से बात करेंगे, क्योंकि उसको मालूम है यही है वो इंसान है जो मेरे बच्चे का भविष्य का शेप देते हैं, बराबर है? दैट इज द मैटर ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट, व्हाट वी गेट एवरी डे। अंडरस्टूड? कि मान लो आज दुनिया का सबसे खराब में से खराब आदमी ढूंढ लो, वो भी ऐसा नहीं सोचेगा कि चलो मेरा बेटा भी मेरे से बड़ा कमीना बने, मेरा बेटा मेरे से बड़ा गुंडा बने। वो भी ऐसा नहीं सोच, वो भी ऐसा सोचेगा कि मैंने तो अपनी जिंदगी खत्म कर दी, मैंने तो गलत रास्ता चुना, लेकिन मेरे बेटा ये नहीं करना चाहिए, उसका भविष्य अच्छा होना चाहिए। और अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए अच्छे शिक्षक की जरूरत होती है।
And that is the respect. Why? Teachers respect, society respect teachers. And that is what we get from society. Understood? So, it is not a violation of right of equality. Okay, children? The aim of this right is to form equitable society and thereby establish the law of India. That was right of equality. Now, right of freedom. Second right. The Constitution of India provides to the citizen 6 types of freedom rights, which are as mentioned below. Number 1, right of speech and expression. आपको पूरा बोलने का अधिकार है, right of freedom, लेकिन सही बोलना पड़ेगा. आप कहीं भी जाके गालियां बोलने लगो और फिर बोलो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, ऐसा नहीं चलता. कोई मार मार के कीमा बना देंगे. बोलने का हक है, लेकिन मर्यादा में रह के बोलने का है. किसी का आप अपमान नहीं कर सकते हो, किसी को कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल सकते हो. ये राइट वापिस नहीं है, ध्यान रखना. हाँ, आप तो ऐसे बोले सर आपने तो बोला था राइट ऑफ फ्रीडम है, मैं तो किसी को गाली दे के आ गया. ऐसे थोड़ी चलता है. नंबर 2, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. मतलब जुलूस, सरघस, सभा, वो हमारा राइट है, लेकिन उसमें वायलेंस नहीं चाहिए, आर्म्स एम्यूनिशंस नहीं चाहिए. राइट. थर्ड, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस. अपने समूह के यूनियंस, एसोसिएशन बनाना हमारा हक है. टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ अ नेशन. हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, आप आजाद हो. आसाम का बंदा गुजरात आ सकता है, गुजरात का बंदा केरला जा सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं है. पूरा देश हमारा है, हम सिटीजन है इसके, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए. आप देखते हो कई सारे नॉन गुजराती फैमिलीज हमारे भावनगर में नहीं रहते हैं ना. आए समझ में? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विच इज लीगल. जो लीगल हिसाब से जो काम धंधा होता है वो हमारा राइट है. अगर मैं एक छोटी सी करियाना की दुकान लगा दूं, किराने की, तो वो कोई गलत काम नहीं है, मेरा राइट है, मैं काम करता हूं. बराबर है. हाँ, गुजरात में अगर दारूबंदी है और मैं ऐसे बोलूं कि चलो मेरे को एक दारू की दुकान खोलनी है, लिकर शॉप खोलनी है, तो वो नहीं हो सकता. वो ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि नहीं धंधा करना तो मेरा राइट है, क्योंकि ये धंधा इलीगल है गुजरात में. मतलब यू कैन प्रैक्टिस द प्रोफेशन विच इज लीगल, यू आर फ्री. आज मैं टीचर बनाऊं तो मैं अपनी मर्जी से टीचर बनाऊं, मेरे कोई दबाव नहीं था, मैं अपनी मर्जी से ये फील्ड में आया हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं. तो इलीगल है, ये कोई इलीगल काम नहीं है. बराबर है. आई हैव दैट फ्रीडम. अच्छा, अभी मैं टीचर हूं, कल का मेरे को मालूम नहीं, अगर शायद मैं कोई दूसरे बिजनेस में चला जाऊं, दूसरा काम करने लगूं जो लीगल होता है, तो उसमें भी मेरे को कोई नहीं रोक सकता. कोई मेरे को ऐसे नहीं बोल सकता कि किरण भाई आप तो शिक्षक थे, टीचर है, टीचिंग करो, ये धंधा नहीं करने का. क्यों नहीं करने का भैया? इट इज माई राइट. I can practice any legal profession which I like. Understood, children? So, these rights are of utmost importance for the overall development of personality and expression of Indian citizen. Understood? For harmonious working of democracy and healthy lifestyle, any individual cannot exercise this right autonomously and irresponsibly. जो मैं अभी समझाने चाहता था वो लाइन आ गई. आपके पास राइट है, लेकिन उसका इरिस्पॉन्सिबल यूज नहीं होना चाहिए. वो नहीं कर सकते. ऐसा समझ में? द स्टेट कैनॉट कंट्रोल एंड लिमिट द राइट ऑफ फ्रीडम. इवन सरकार
हमारी फ्रीडम पे तराप नहीं मार सकती इफ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। अगर हमारी फ्रीडम से अगर किसी को नुकसान होता है तो सरकार हमको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, लेकिन हमारी फ्रीडम पे सरकार अपना अधिकार नहीं जमा सकती। वो हमारा बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट? This has been clearly mentioned in the Constitution of India, stated that constitutional rights can be exercised, right? Now, Indian citizens have been given the freedom of speech and expression, जो मैं बोलना चाहता था। हमारा अधिकार है, हम सच्चाई सामने लाए, सच्ची बात बोले, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती है, समझ में? This can be expressed either orally, verbally or through gestures, इशारा। हम अपना एक्सप्रेशन कर सकते हैं, जो सही है उसमें बोल सकते हैं, उसमें कोई नहीं रोक सकता। But this does not provide of exercising these rights in unlimited and unrestrained manner. उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। अभी मैंने बोला था ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी भी इंसान को रास्ते पे जाते हो इंसान को आप गालियां दे दो, फिर बोलते हैं क्यों, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये रिस्ट्रिक्टेड राइट है, ऐसा नहीं करने का है। आपको अपनी मर्यादा में रह के, अपनी रिस्ट्रिक्शन में रह के ये राइट का इस्तेमाल करना। ऐसे नहीं है कि हमारा राइट है, हम जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं चलता, राइट? सही। Certain necessary controls and limitations have been stated in the Constitution. There are some controls, right? The state can put under control of maintaining the national unity and integrity of a nation. अगर वो राइट से भारत देश को खतरा होता है तो वो राइट्स कर्टेन हो सकते हैं। Safety of the state, the amicable relation with foreign nations, public management and peace, compromise for the safety, morality, discipline, contempt of court, कोर्ट का अपमान करना, defamation and provoking violence for crime, ऐसी भाषा बोलना जिसमें क्राइम बढ़ के, ऐसे भाषण करना जिससे कौम कौम के बीच दंगा फसाद हो जाए, ऐसा भाषण करना जिसमें दो देश के संबंध तंग हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी डेंजर में आ जाए, तो ये राइट नहीं है, तो उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देती है। आए समझ में? It is the authority of the judiciary whether these many limitations are appropriate or inappropriate. आए समझ में? The purpose behind the freedom of express, through which ideas and opinions put forth the welfare of the people, can be separately mentioned. It can be mentioned separately, right? It can be included in the right of expression. Now underline this line, most important, अभी मैंने बताई थी ना. The latest amendment in 2009 in Constitution of India confers free and compulsory primary education to the children between 6 to 14. अभी मैंने समझाया था ना डिटेल में, माँ बाप भी बच्चे को पढ़ने से मना नहीं कर सकते हैं। हर एक बच्चे को स्कूल जाने का हक है, हर एक बच्चा पढ़ सकता है, हर एक बच्चा अपना भविष्य बना सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, समझ में? If a person is not convinced for crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment and prescribed by the law. Cannot be given punishment more than once. एक ही गुनाह के लिए दो बार सजा नहीं मिल सकती है, एक गुनाह के लिए एक ही सजा होती है, समझ में? Cannot be given to the same convicted person. No individual can be deprived of his life and liberty except the procedure of law. किसी को किसी की जिंदगी छीनना हमारा हक नहीं है, सिर्फ ये हक कानून को दिया गया है,
अगर क्रिमिनल है पर्सन तो कानून उसको फांसी की सजा देता है, तो वो कानून दे सकता है, हमारे हाथ में फांसी देना नहीं है। अगर हम ये सब करते हैं तो हमने किसी की हत्या की है, हमारे पे कानूनी मुकदमा चल सकता है, हम कानून में फंस सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। No one can be arrested without being told and ground on such arrest. फिर पुलिस किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती है, पुलिस के पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, तो ही किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, राइट? इफ अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ हिज चॉइस, वो अपना वकील खुद रख सकते हैं, अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं, तो कानूनी हक है हमारा। An arrested person has to be brought to the nearest magistrate within 24 hours. कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना हो, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है, चाहे पब्लिक हॉलिडे हो, चाहे संडे हो। मैजिस्ट्रेट साहब के घर जाके उस पर कार्यवाही की जा सकती है, जज साहब के घर जाके इस पे कार्यवाही की जा सकती है, समझ में? Without the permission of individual kept in custody as per Prohibition Act, a person under arrest, this act is not applicable to the foresaid matter. किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। If the state anticipates the criminal deed or activity from a person, then the precautionary measure can be taken and that person can be detained for under Preventive Detentive Act. अगर मान लो कोई बंदे का हिस्ट्री है, पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड खराब है, तो अगर कोई घटना बनने वाली है तो ऐसे कई लोग होते हैं जिसको सरकार, पुलिस लोग उठा उठा के पहले ही बिठा देते। क्यों? कि अगर ये लोग बाहर रहे तो कोई बखेड़ा करेंगे, इसलिए अब भैया 2 दिन लॉकअप में बैठो, ताकि शांति और व्यवस्था, कानून व्यवस्था में बाधा ना आए, राइट? द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज नॉट टू पनिश और कन्विक्ट, but to stop him or her from doing any criminal activity against state, society or individual. ये punishment नहीं है, punishment crime control करने का एक नजरिया है, ताकि कोई गुनाह ना हो सके, कोई नुकसान ना हो सके। Under this act, a person can be detained not more than 3 months. फिर डिटेंशन एक्सटेंड होता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा आप किसी भी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बाहर नहीं रख सकते, राइट? द डिटेंशन इन ऑर्डर कैन बी कैंसल बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन, एक्सटेंशन हो सकते हैं, बराबर है? तो ये था मेरा आज दूसरा टॉपिक। अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट बाकी है, बराबर है? चलो बच्चों, आप होमवर्क लिखो। Right? Now it is my time to give your homework. I hope you enjoyed this lecture. सही है? आया ना? मजा आया ना लेक्चर में? आराम से पढ़ने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, हाँ? चलो, GR number 1. Every child has a right to get educated. अभी मैंने बताया ना, माँ बाप भी ना नहीं बोल सकते स्कूल पे जाने के लिए, हाँ? गेट एजुकेटेड, राइट? नंबर 2, write a short note on right of freedom. राइट ऑफ फ्रीडम, बराबर है? 3rd,
what is meant by preventive detention. तो ये हमारे 3 सवाल है, बराबर है. नंबर 1, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू गेट एजुकेटेड. हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, वो मैंने आपको समझाया है, सही बात है. नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट ऑफ फ्रीडम. वो पूरी शॉर्ट नोट आपके मटेरियल में दी है, पीडीएफ में दी है, वो पूरी 14 पॉइंट की शॉर्ट नोट आपको लिखनी है, लर्न करनी है. और तीसरा, व्हाट इज मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो भी मैंने लास्ट में आपको समझाया है. So with this we are ending our lecture, right children? We will meet in next lecture with new topic. Till then, take care, enjoy yourself, goodbye.